All right. In the last lecture, if you could remember, we were studying a very important example, and that was the application of time diversity in 2G systems. So we discussed a lot about convolution codes and all that, and we saw that in TDMA fashion, the slots are divided among 8 users. Now, first data of the user is repeated once the whole slot is finished for 8 users. Then in the second, so I also made a diagram which you can see here. I could also enlarge this. So here you can see that what is actually happening. So the 0 bit goes into the first time slot, and then the 8th bit will go, and so on and so forth. After every 8 bits, they will be going up till this last bit. This will be the data for the first user. Now, adjacent to it will be the data for the second user, or 0th user, or the first user, second user, so on and so forth to the 7th user. All of this will be filled. Now, in the second time slot, again, the data will be firstly placed for the first user. So first user 1 bit will come, then its 9th bit will come, and again with the table of 8 it will be repeated. Then all the users data will come, and so on and so forth. This will go on. So so one time slot of a user will appear after 4.615, and we calculated this time 4.615 milliseconds, how it comes. And so after this 4.615, the next data of the first user will come, and similarly for every other user after this much second the data is coming. All right, so its calculation here, for example, it was 8 into 577, because 577 was the time slot for one user. So 8, this comes to be the total time, or the one frame, which has this one frame which has a data of all the users. So once this frame is finished, then the next frame arrives, and the first slot is again fixed for the first user. So total frames that will be required will be 8 frames. The total data is divided into a total of 8 frames. Each frame is a 4.615. Totally you have a delay of 33 milliseconds. So up till 40 milliseconds this delay is acceptable. So that is how convolution codes and diversity is applied in TDMA or in 2G systems. So because you are dividing your data into 8 different frames, and those frames are coming at different, if they are coming in different coherence time, the maximum diversity gain will be 8. This will be in addition to the coding gain that will be provided by the convolution codes. We are just discussing here the diversity gain. Now, for us to have this diversity gain, this means that every other frame must come in a different coherence time. Now we know that the coherence time is given by this thing, on that ideal channel that we discussed in chapter 5, and you can just put the value of ds, the droplet spread, for that example. So it comes out to be this way. This is the coherence time.
Now the coherence time has to be less than 5 milliseconds, so that after every 4 milliseconds, or of the order of 4 milliseconds, you are well sure that the next slot is coming with a different coherence time. So you will be getting that diversity key. So 5 milliseconds must be greater than the coherence time, or coherence time must be less than 5 milliseconds. So we can see that coherence time is this formula. You can put this value. You can put the value of n, put the value of c, values of velocity, you can very well see that the velocity is 5 into the power 3. If you could remember how this this value came, yeah, it was a mobile speed. We wanted to find the mobile speed here. So what we want to find the v velocity. What should be the v velocity so that the coherence time is less than 5 milliseconds. So I will take this v here, and this 5 millisecond will come here. So I will try to find this number for which the velocity should be greater than this number. After due calculations, I get my velocity to be greater than 12.5 milliseconds. I convert milliseconds into kilometers per hour, and I got approximately 45 kilometers. Right. So the speed must be greater than 45 kilometers. Then I will get a diversity gain of 8. सर ये हम मैथमेटिकल मॉडलिंग किस लिए कर रहे हैं? मैथमेटिकल मॉडलिंग तो आपने पहले की थी ना, चैनल की मॉडलिंग जो हमने वी हैव डन दिस इन चैप्टर 2. So we are just using the formulas of coherent time from that modeling of chapter 2. Here we, ठीक है, तो just put the formula and you will calculate the value. यहाँ बुक ने ना 30 किलोमीटर पर आवर लिखा है, तो वो इसकी वैल्यू गलत भी हो सकती है थोड़ा सा, कि आप हमने तो एक्चुअली तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू तो ली नहीं नोट्स के अंदर. यहाँ पे जो मैंने वैल्यू ली अगर आप देखें तो मैंने लिखा था मतलब कि लेस देन या टी सी मस्ट बी लेस देन 5 मिली सेकेंड्स. अगर आपने बहुत ही एग्जैक्ट होना है तो फिर तो सही बात है, वैल्यू आपको पुट करनी चाहिए 4.615. 4.615 यहाँ पुट करेंगे तो ये 4.615 यहाँ आ जाएगा. पहले आप 5 से डिवाइड कर रहे थे, अब आप 4.615 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मज़ीद बढ़ जाएगी. ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. मकसद है कि आपको आना चाहिए कैलकुलेट कि जी गाड़ी की क्या स्पीड होगी रफ कैलकुलेशन के मुताबिक, जिस पे आपको जो है डाइवर्सिटी गेन जो है कम से कम 8 का मिल जाए. Alright, so many times what happens that you are not in a car. Alright, you are, let us say, walking, or let us say you are just standing. Then what will we do? In that case, you can see the coherence channel will not be changing at that rate. If you are not walking, there will be coherence time, everything will be coherent. There will be no change, much of a change. So what should we do then? What should the system do? Said system goes into the frequency hopping mode. Alright, so what it do, it jumps from one 200 kilohertz channel to another 200 kilohertz channel. Okay, and thing is that for GSM, delay spread is approximately 1 microseconds. So the coherence bandwidth, this formula was also in chapter 2, 1/2 TD. So 1/2 micro, or you can say micro, 1 microsecond is micro, and then you come out like this, it comes out to 500 kilohertz. So coherence bandwidth is 500 kilohertz. So what you will do, you will make sure that you apply the first slot or the first frame in one frequency. The second frame will be in a frequency, okay, that will be
500 kilohertz away from the first frequency. All right. So in this case, it will be in a different, coherence bandwidth will be it will be in a different channel, which will be outside the coherence bandwidth. Hence, it will be fading independently. Hence, you will again get the diversity gain. From one 200 kilohertz to another, with a typical delay of 1, the coherence bandwidth is 500 kilohertz. Total bandwidth equal to 25 megahertz is much larger than the typical coherence bandwidth. 25 megahertz is the total bandwidth that has been allocated to the system, and this 25 megahertz is divided into 200 kilohertz subchannels. So you can see this is very large. This is just 0.5 megahertz. So after any of the 0.5 megahertz, okay, you are dead sure that you will get a different bandwidth with a different channel coefficient. Independent fading, and hence you will get full diversity. Next topic that we will study is antenna diversity. Now for time diversity, we saw that we have to have interleaving, we have coding, and we have to code them across several different coherence time, otherwise you won't get the gain. But many times, as I was telling you, you have constraint requirement of delay, that you have very strict requirement. Oh, you cannot delay the signal, because once you are sending a signal in another coherence time, you have to wait till the channel comes to be different. So you have to have those applications where you can accommodate those delays, but many times you cannot accommodate these delays. You have to very strict, just send the data as and at the point that you have received it. So this will not be possible, exploiting time diversity. So what is the other diversity? Other diversity is the antenna diversity. So what we do, we place multiple antennas at the transmitter or at the receiver, and we know that if the antennas are placed sufficiently apart, very far from one another, then we very well know that they will be away from one another with respect to the coherence distance. So if they are away from one another with respect to the coherence distance, then their channel gains will be independent. Channel gain from one antenna to, let us say, the receive antenna will be different as compared to channel gain from two transmit antenna to the receiver, same receiver. Alright. Channel gains between different antennas fade more or less independently, and independent signal paths are created. Yes, definitely. If they are far away from one another, you will be generating independent signal paths or independent channels. So this distancing between the antennas, it depends on the channel environment. For example, if you are in a crowded place where there are many scatterers, buildings, and houses and population and cars, there you can very well assume the channel will decoderate over very small distances, small spatial distances, and normally we place half or one half of wavelength distance between the elements or antennas. Now, in other words, if base stations are on high towers or on those places where you don't have much scattering, in that case you require larger antenna separation.
So we will be looking both as receive diversity and transmit diversity. What is received diversity? Received diversity is that you have SIMO channels, which means that you have a single transmit antenna but you have multiple receive antennas. And transmit diversity is that you have multiple transmit antenna and single output or single receive antenna. Problems for MISO have resulted in very important codes which are called the space-time codes. And then we have channels which have both SIMO and MISO properties, which are called the MIMO channels, which have multiple transmit antennas as well as multiple output or multiple receive antennas. So MIMO, these are the properties of आपकी both the आवाज नहीं SIMO. आती दरमियान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं ना वो मसला मेरे एंड पे हो रहा है, इसमें मुझे सर वो नींद पूरी नहीं हो पा रही ना रात में, तो बीच में मुझे नींद आने ये लगती है ठीक है सर। नहीं, तबीयत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बस नींद नहीं पूरी हो पा रही। सर सर ये के साथ भी कल रमज़ान जो के चीना वाले सर थे वो भी और यही किसके डिस्कस कर रहे थे, रमज़ान में सर वो काफ़ी मसरूफियत हो जाती है हाँ, वो और फिर असल में ना नींद रात को भी नींद नहीं पूरी हो रही, तब वो रात को ही सोने का टाइम होता है, फिर दिन में काम शाम हो जाते हैं, फिर वो आपको पता है आजकल लॉकडाउन का चक्कर है, तो सारे काम घर के भी इसी स्लॉट में करने हैं आपने, बस वो एक साइकिल चल गया। अल्लाह करे मेरी नींद पूरी हो जाए किसी दिन बैठ के ना, तो फिर इंशाल्लाह। मैंने कोशिश किया मगर आज भी वही प्रॉब्लम हो गया कि नींद नहीं पूरी हो सकी। अच्छा खैर, नो प्रॉब्लम, लेट अस गो सर फर्दर। सर ऐसे नहीं अच्छा, कर ऐसा सकते करें कि जब वो आप। लेक्चर, जी जी, सर आप लेक्चर रिकॉर्ड कर दें, जब आपके पास टाइम हो रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर दें, हम उसको डाउनलोड करके देख लें। नहीं वो फिर वो और लाइव नहीं क्वेश्चनिंग रहेगा ना। हाँ, नहीं आप इसमें ना क्वेश्चनिंग का जब, मसला। जी जी, आप इसके इसमें ना अलावा मुझसे जब आपको लगे कि मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई ना, तो आप प्लीज़ मतलब कुछ कह दें सर, मतलब सर लेक्चर या जो भी कोई इस तरह से कि सर जी मतलब कोई आप जुमला बोल दें ताकि मुझे फिर फ़ौरन में फिर नींद टूट जाएगी। मुझे कोशिश तो कर रहा हूँ इस नींद के लगता साइकिल आपकी से बाहर आऊँ। नींद नींद आपकी लगता बिल्कुल नहीं पूरी होती। हाँ, नहीं इस दफ़ा तो बिल्कुल ही, मेरे बच्चों ने भी बड़ा तंग किया, छोटे बच्चे वो फजर के बाद भी सोए नहीं, तो उन्होंने काफ़ी दौड़ा दिया मुझे भी। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेट अस ट्राई टू कंप्लीट दिस लेक्चर। अच्छा, सर वैसे भी इबादत की रात है तो अगले दिन मुश्किल ही होता है। हाँ वो भी था कि आज वो 21वीं वाली भी चक्कर था उसमें, फिर कोशिश में मैंने की भी जितना हो सके जागूं। वो जागते भी रहे सोते भी रहे, तो बस वो डिस्टर्ब ही रहे काफ़ी। ऑलराइट, सो मैं क्या कहने लगा था आपको। So we have SIMO and MISO. They both become apparent when we are discussing MIMO channels. So MIMO channels have both multiple transmit and multiple receive antennas. Now, so we will be inshallah studying that diversity is provided by these MIMO, SIMO and MISO channels, and they also provide degrees of freedom. And we will be seeing some of the issues for our 2x2 example, but full study will be covered in the next course. Understand receive diversity. So what is receive diversity? Receive means that you have one transmit and you have L receive antennas. The model is as follows. So same signal you send, but it is being received through L channels or L antennas, and those L antennas are far spaced so that all of their HFLs, they are independent. So you can see the power of space here. Previously, if you wanted to have coherent, non-coherent or independent channels, you had to wait for a full-fledged coherence time. But here you have placed the antennas in such a way so that the signals that you are receiving, they are uncorrelated or independent with respect to the signal that is being received at the other channel because of this HFL. आपको समझ आ गया इक्वेशन? सर ये एल डाइवर्सिटी पाथ्स के लिए। हाँ, ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं?
सिंगल इनपुट मल्टीसाइमो के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं, अब एल डाइवर्सिटी पास तो हमेशा ही एल है ना, मगर आपने अब देखना कि एल बने कैसे। पहले एल बन रहे थे एल डिफरेंट कोहेरेंस टाइम में भेजने से, अब बन रहे हैं कि यू आर एल डिफरेंट एंटीना से ले रहे हैं, और हर एंटीना जो है दूसरे एंटीना से उसका जो चैनल है वो इंडिपेंडेंट है। सर ये एंटीनास रिसीवर एंड पे है या ट्रांसमिटर एंड पे, ये माइमो? हाँ, ये अब नहीं, अभी माइमो नहीं पढ़ा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिसीव डाइवर्सिटी खाली। इसको हम कहते हैं साइमो, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। मल्टीपल आउट। फिर फिर हम पढ़ेंगे माइजो, फिर हम पढ़ेंगे माइमो, अभी हम सिर्फ साइमो पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए ना, इसका ये होता है, एक से भेजा और ये दो में रिसीव, दो में अच्छा खासा फासला है, ये चैनल जो यहाँ से यहाँ आ रहा है और ये चैनल, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। तो आपने एक सिग्नल भेजा, उसको दो इंडिपेंडेंट पास सिग्नल बन गए, उसको डबल डाइवर्सिटी गेन तो वैसे ही मिल गई, ठीक है ना। अगर आप एल से भेजेंगे, एल एंटीना से रिसीव करेंगे, तो उसको एल डिफरेंट मतलब उसको फेडेड सिग्नल्स मिलेंगे, तो डाइवर्सिटी गेन आपका एल टाइप से हो जाएगा, एस एन आर की पावर एल। नॉइज तो इसमें यही रहेगा, ये जो डब्ल्यू एल एम है, आप देखिए ना, एक के साथ ये सिग्नल आ रहा है, एक एच एल के साथ आपने जब एक एक्स एम भेजा, मगर आपको एल वाइज मिल रहे हैं, आउटपुट आपको एल एंटीनास में मिल रही है, उसी एक सिग्नल की कॉपीज आपको एल जगह मिल रही है, और नॉइज हर जगह तो वही होगा, वही एन नॉट बाई टू, एन नॉट बाई टू, और अब बता आई क्यू चैनल, और ये बन जाता है। अब हमें फ़ायदा क्या हुआ, वी वांटेड टू जस्ट डिटेक्ट एक्स ऑफ 1 एंड वी आर गेटिंग एल आउटपुट्स, ठीक है। तो उसने कहा ये तो वैसे ही हो गई जैसे आपके पास रेपिटेशन कोड में था, ठीक है, और उसको बेशक आप इंटरलीव कर लें या ना करें या जो मर्जी, अगर आपने एल ब्रांचेस और डाइवर्सिटी यूज़ की तो ये भी वही चीज़ हो रही है, मगर फ़र्क ये है कि वहाँ पे आपको एल टाइम स्लॉट्स को इंतज़ार करना था, यहाँ आपको स्लॉट्स को इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं, आपने पैसा खर्च किया, आपने 9 एंटीना लगाया, आपको 9 का गेन वैसे ही मिल गया, बजाय कि आप 9 टाइम स्लॉट्स तक इंतज़ार करते रहे। तो एल डाइवर्सिटी ब्रांचेस नाउ ओवर स्पेस इंस्टेड ओवर टाइम। ये मैंने आपको कहा था, रीज़न ये था, वी कैन अज्यूम गेन्स आर इंडिपेंडेंट रियली एंड देन वी कैन गेट अ डाइवर्सिटी गेन ऑफ एल। दूसरा उसने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बताया कि जी with received diversity जो हमने साइमो पढ़ा है, there are actually two types of gain as we increase L। अब ये कैसे, देखिए ना, पहली बात है कि BPSK के साथ आपका ये एरर बनता है, ये हमने पहले ड्राइव किया बहुत दफ़ा फॉर्मूला, ये कब था, जब आपने H आपका मतलब के चैनल के कोफिशिएंट्स थे जो वेक्टर में स्टोर थे, चूँकि आपने अगर फर्स्ट के रेपिटेशन कोड यूज़ किया है तो यू हैव एक्चुअली repeated your signal over, let us say, L coherence or L symbol times या L different coherence times। so आपको पता है गेन आपका h mod square आता है, ठीक है। यही गेन, this same gain you will be getting for space diversity, where you know this h is not over single antenna different time, but this h is over different antennas. All right, so you don't have to go for very large amount of time, just have to make up number of antennas and you will be getting this gain. Now this same gain can be divided as h mod square is equal to LSNR dot 1 over L h mod square. So you can also write this as follows. सर ये ड्राइव्ड एक्सप्रेशन है, यानी रिजल्ट खाली लिख दिया गया LSNR? नहीं, ये तो देखिए ना, ये क्यों किस पे डिपेंडेंट है, एच मॉड स्क्वायर एस एन आर पे, ये हो गया। हमने क्या किया, एल से मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड किया, हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की, मगर हम ये कर क्यों रहे हैं ये आपको मैंने बताना अभी। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू आवर रिसीव्ड डाइवर्सिटी। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द एरे गेन, द पावर गेन। एंटेनास में आपने पढ़ा होगा एरे गेन, जहाँ 11 फैक्टर को निकाल देते हैं और नो जो सर, इनका, हमने अगेन नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा चलें, होपफुली आप कभी ना कभी तो पढ़ेंगे अभी वहाँ, आप अभी तो पढ़ेंगे। अरे अभी कौन कौन से से हैं? चैप्टर पे, भी आप किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं अभी? 6 चैप्टर
6 चैप्टर पे पहुंचे हैं अभी। 6 चैप्टर कौन सा है? अरे वाला ही है, लेकिन अभी हमने तो उसमें आएगा चीज ना पढ़ी एरे नहीं है। गेन, तो जी पढ़ सर वो लीजिएगा। कौन सी देर है, ये तो कोई बात ना हुई ना, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, इसमें कौन सी। ठीक है, तो एरे गेन सर आप पढ़ेंगे ये अच्छा। हाँ, आप उसकी बेस पे बात करेंगे तो हमें तो अभी समझ नहीं आएगी। नहीं उसकी बेस पे मैं बता रहा था कि मैंने कहा शायद अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको फ़ायदा हो जाए, तो आपने नहीं पढ़ा हो तो कोई नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे हम कह रहे हैं इसको हम पावर गेन या इसको एरे गेन भी कहते हैं। ये एरे गेन वही है जो आपको एंटेना में नज़र आएगा जब भी आप एंटेना में पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी तो आप यहाँ से समझे ना खाली। ना फर्स्ट टर्म को हम एरे गेन कहते हैं, और अगर आप देखें सेकेंड टर्म है वो क्या है। फर्स्ट एरे गेन है क्या? एरे गेन बेसिकली ये है कि आपने अपने एसएनआर को एल टाइम्स बढ़ा दिया। वो कैसे बढ़ाया आपने? आपने कोहेरेंट कंबाइनिंग की। आपने रिसीवर पे क्या किया? कोहेरेंट कंबाइनिंग। देखिए हर एंटेना पे जो सिग्नल आ रहा था वो H1 इंटू एक्स आ रहा था, प्लस नॉइज वाइज को छोड़ दें, ठीक है ना। हर या H2 इंटू एक्स था। अब आपने जब उसको कोहेरेंट कंबाइनिंग में आप क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई बाय एच ओवर एच, एच वेक्टर ओवर एच मॉड, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जब एच वेक्टर को एच से मल्टीप्लाई करें तो हर जगह एच मॉड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हर जो होगा उसके साथ एक एच का मॉड स्क्वायर हो जाएगा, और ओवरऑल आपको एच टाइम्स गेन मिल जाएगा, जैसे हमने पहले भी देखा था, ठीक है। और वही जो गेन है वो अगर आपने प्रॉपर सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं, यानी कि हर एच अपने एच के साथ मिलता है और वो मॉड स्क्वायर होता है, तो फिर इसका मतलब आपको बेसिकली एच मॉड स्क्वायर यानी 1 के बराबर है, सारे ऐड अप होंगे, तो एसएनआर आपका एल टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि सिग्नल टू नॉइज रेशियो 1 का था, अब वही चीज़ एल दफ़ा रिपीट हो रही, ठीक है। तो आपको एल टाइम्स अपना सिग्नल मिल रहा। तो जो इफेक्टिव टोटल रिसीव पावर है वो आपकी एल से लीनियरली इंक्रीज हो रही है। डबलिंग एल यील्ड्स अ 3 dB पावर गेन। आप डबल करेंगे एल को तो गेन भी आपका डबल हो जाएगा, पावर गेन भी डबल होगा। जाहिर है जितने नंबर मेंटेनेंस लगा रहे हैं हर एच के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लें जब आप कोहेरेंट कंबाइनिंग करते हैं एच इंटू द सिग्नल एच ओवर एच मॉड, तो आपके पास एच मॉड स्क्वायर निकल आता है वहाँ पर, तो आपके पास एच मॉड आता है। अब जो आपका एच मॉड है वो अगर एल की लेंथ है एल एल निकल आएगा वहाँ पे, तो आपको एल टाइम्स गेन मिल जाएगा। जितना एल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा गेन हो जाएगा। तो सेकंड टर्म में जिसको हमने 1/h मॉड स्क्वायर, ये आपका डाइवर्सिटी गेन दे रहा है आपको, क्योंकि वो एवरेज कर रहा है आपके इंडिपेंडेंट पाथ्स पे। और जब आप एल इंडिपेंडेंट पाथ्स लेते हैं उस पर आप एवरेज लेते हैं, यू नो वी ऑल नो that you get the L diversity gain, because even if one is in a destructive state but the other gains they will be present, and hence you will get a diversity gain of L. ठीक है, और इसका गेन आगे होता है 1/SNR to the power L हो जाता है, तो ये आपको देगा 1/SNR L के हिसाब से गेन। और ये चीज़ क्या देगा, ये तो आपका पावर गेन या एरे गेन होगा, जो आपको बेसिकली जितना अच्छा एल और जितनी मैचिंग होगी उसके हिसाब से उतना एल आपको गेन मिल जाएगा। अगर कोई एच से मैच नहीं होगा तो आपको गेन नहीं मिलेगा, अगर एच से मैच हो रहे हैं, प्रॉपर हो रहे हैं, तो लाजमन आपको वो गेन मिलेगा। यहाँ पे उसने ये ऑल्सो डिस्कस दैट इफ द चैनल गेन्स आर फुली कोरिलेटेड। अब सारे चैनल गेन्स आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर फुली कोरिलेटेड, तो इंडिपेंडेंस तो जीरो होगी, ठीक है। then you can very well see that you will not get the diversity gain, because if one is in destructive mode all the other coefficients will also be fading, but you will still get the power gain। ठीक है, सारे एच एक जैसे थोड़े बहुत डिफरेंस है मगर तकरीबन सब कोरिलेटेड हैं, मगर यहाँ तो आपने वही कोहेरेंट कंबाइनिंग में वही वाला एच लगाना है और आपको फिर एच मॉड स्क्वायर का गेन मिल जाएगा। एच मॉड की लेंथ 1 है
मतलब अगर आपने एल है तो एल की लेंथ आ जाएगी टोटल सारे एच मिला मिलू के, तो आपको एल का गेन मिल जाएगा बकायदा, तो वो गेन फिर भी रहेगा। और अगर दूसरी तरफ ए के सारे एच एल इंडिपेंडेंट हो, अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर तो ये गेन तो अपनी जगह होगा, ठीक है, और ये वाला गेन अपनी जगह होगा। ठीक हो गया? सो हाँ, सेकेंड टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको तो एच मॉड स्क्वायर बराबर का समेशन ऑफ सारे एच एल्स की मॉड की एडिशन। ये इसने बड़ा अच्छा जुमला लिखा, मैंने इसलिए स्पेशली हाईलाइट भी किया, पहले मैंने नहीं किया होता था। यू कैन सी एक्चुअली आप कहेंगे सर वो तो टाइम डाइवर्सिटी में फिर आप डिवाइड कर दें, मगर अल्लाह के बंदे वहाँ और यहाँ बड़ा फर्क है। रिमेंबर, उधर तो अगले कोरेंस टाइम के लिए यू हैव टू सेंड योर डेटा बाय योरसेल्फ, यू हैव टू सेंड मोर पावर इन द सेकंड कोरेंस और थर्ड कोरेंस टाइम। Here this is not such, you are just sending data at one time and it is by itself repeating because of the number of multiple antennas. You are not sending extra power. Okay, so there you cannot call it a power gain. Here you can call it a power gain. You increase the number of antennas, the power becomes double. If you double the antennas, your power will be double at the receiver. हाँ, वो तो मैं पता है कि वो कन्वर्ज टू 1 करेगा, चूँकि एच मॉड स्क्वायर जो है ना वो आपको पता है कि उसकी लेंथ ही एल होती है। अगर एल इसमें पाथ्स हैं तो हर एक की वैल्यू जो CN01 है, हर एक का मॉड स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो ऐड करेंगे तो एल हो जाएगा, हम 1 ओवर एल से डिवाइड करें तो बस 1 आएगा ओवरऑल, जब आपका एल बहुत इंक्रीज भी हो जाता है। मगर पावर गेन को तो कोई मसला ही नहीं है, जितने एल एंटेना बढ़ाते जाएंगे वो टक गेन जो है आपका डबल बढ़ता जाएगा। मगर इसमें यह है कि ये खैर इन्फिनिटली नहीं जा सकता, ये तो नहीं हो सकता कि आपने 1 वाट का सिग्नल मिला है और आप वहाँ पे 10 वाट ले रहे हैं, ये तो नहीं होगा। मतलब 1 वाट तक जितनी आपने पावर सेंड की है, अगर आप इससे बहुत नीचे हैं तो आप बढ़ाते रहेंगे नंबर ऑफ ताकि पावर बढ़ती रहेगी यहाँ तक कि आपके पावर जो है ना एग्जैक्टली उसके बराबर है जो पावर जिस पे ट्रांसमिट पावर से बढ़ तो नहीं सकते आप। सो नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम, second problem is of MISO. But why MISO? My PhD is also on MISO. So why do we want to go in MISO? The answer is that in 3G, we wanted the mobiles to be cheaper. We wanted the mobiles to be simpler. You can very well see nowadays if you go to the market, हाँ जी स्मार्टफोन लेना है, स्मार्टफोन में कम से कम 2 एंटेना है, प्राइस ही 15,000 से कम का है ही नहीं। अच्छा जी, चलो जो स्मार्ट नहीं है, जो 3G तक भी चल जाते हैं, हाँ जी वो तो भी सस्ते हैं, जो 4G कंपेटेबल, 4G में 2 एंटेना होना मस्ट है, उनमें होना मस्ट नहीं, वो आपको 8,000 के 3-4,000 तक के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वी वांटेड दैट द यूजर्स हैव चीपर सेट्स, फॉर दैट we said all right the user can have only one antenna, so we will have a multiple antennas only at the base station, so we will have a MISO system, multiple input single output. Now how can we get a diversity gain? Now we don't have that luxury of having L antennas at the receiver, we have just one antenna at the receiver. All right, one way is that I have 10 antennas at the transmitter. I send my first symbol, from one antenna and the rest are silent. Then I send the same first symbol to the second antenna, rest are silent. So you can see here that every copy is going through a different channel. But the problem is that when one antenna is sending, all other antennas are silent. So it is a very wasteful procedure with respect to the degrees of freedom. Our degrees of freedom are being wasted. So, and you can also use any, block code, convolution code or other codes on this scheme, but again same technique has to be applied, that one antenna sends first
code or block of your coding scheme or symbol of your mapping, and all other antennas are silent. So you will get coding gain also if you apply code and then you send, other than the diversity gain that you will be getting if you use the repetition code with just sending the data with one antenna while all other antennas are silent. But you can also design intelligent codes. There has been a lot of research, and I also compared my procedure with these methods, and these methods, they are covered actually in the new course which is called space-time coding. So here we discuss the simplest and the most elegant and the most famous, and now actually at the center of 3G techniques, but also its other versions are now available in 4G, and I am dead sure in 5G its versions will also be there, and that is the LMUT scheme. सर हाँ जी सर, ये जो भी आपने पैराग्राफ ऊपर वाला करवाया, इसको ज़रा इन शॉर्ट बता दें कि हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जो हमने नेक्स्ट इम्पोज करनी है। हम माइजो पढ़ रहे हैं, माइजो में हमने यही पढ़ा ना कि एक एंटीना है मोबाइल पे। ओके सर। तो आपको डाइवर्सिटी कैसे लें आप? अगर सारे एंटीना, अगर सिंपल डाइवर्सिटी तो इस तरह से हो सकती है कि जी आपने एक एंटीना में एक ही सिंबल भेजें, अगले टाइम स्लॉट में सारों को, फिर फर्स्ट वाले को चुप करा दें, सेकंड से भेजें, तीसरे टाइम स्लॉट में पहले दो को चुप कराएं, तीसरे से भेजें। उसमें वो एक सिंबल आएगा एक वक्त में और वो डिफरेंट चैनल से आएगा और आपके पास डाइवर्सिटी गेन एल आ जाएगा। मगर इसमें ये कि आपने टाइम स्लॉट्स भी ज़ाया की इतनी ज़्यादा, और आपकी डिग्रीज और फ्रीडम बहुत से वेस्ट हो गए। अब इसमें लोगों ने एक ही इनपुट सिग्नल की, हाँ, एक ही इनपुट को आपने बार बार भेजना है। ठीक है पहले सर। आपने पहले एंटीना से भेजा, फिर दूसरे से, तीसरे से। इसमें कोरेंस टाइम का कोई मसला नहीं है, जब आप सेकंड एंटीना से भेजेंगे तो वो होगा ही वैसे इंडिपेंडेंट, मगर फिर भी आपको सिंबल टाइम्स तो आपको लग रहे हैं। एक सिंबल को अगर आपने एल एंटीना से रिपीट करना तो आपको एल स्लॉट्स आप रिक्वायर कर रहे हैं, ये भी तो वेस्ट हो रहा है। इसको हम कैसे ख़त्म करें? ख़त्म करने के लिए लमूटी साहब आ गए, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक बनाई जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने कहा 3G में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सारा बेस 3G का डाइवर्सिटी टेक्निक्स के लमूटी के ऊपर है, फिर आगे जाके 4G में भी आई है माइमो के अंदर इसी के वेरिएंट्स। अब वो कहते हैं जी कैसे इसको हल करें। Now he says that two transmit antenna, single receive antenna channel is written as follows. All right. So what I do, I send two signals x1 and x2 simultaneously from 1 and 2 antenna. H1 is the channel from one antenna to my receiver. H2 is a channel from two antenna to the same receiver, because there's only one receiver. So two signals will be coming plus W. All right. So what does the LMUT scheme say? It says that this x1 and x2, which is now u1 and u2, all right, you send them intelligently. In first symbol time, you send u1 from one antenna, u2 from second antenna, but in the second time slot, all right, what you do, that you send from the first antenna, second time slot, you send -2 conjugate, and from the second antenna, second time slot, you send u1 conjugate,
and because we are sending simultaneously just after one another, we assume the channel remains constant. Channel is almost coherent. You're not saying that you have to send it in a different coherent time. No, just send simultaneously. So what will happen? The signal comes out to be something like this. You'll be getting two signals. So y1 will be this. So in a remote scheme, you send u1 and u2 in the first time slot. You send u1 and u2 in the first time slot from one antenna and two antenna. In the second time slot, you send minus u2 conjugate and u1 conjugate. This will go from second antenna, this will go from first antenna. This space is like this and time is like this. And they will be multiplied with their channel coefficients. Added with noise, you will get y1 signal in the first time slot and y2 signal in the adjacent second time slot. And you can multiply this with this, this goes with this and this goes with this. So you will get this thing, 1 cross 2, 2 cross 2 is equal to 1 cross 2 plus noise. So this is your y, this is your total output, this total output is y. So y vector will be equal to this plus w1, and you can see y2 will be equal to this. सर एक क्वेश्चन है जी जी सर, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो u है ना वो h और x का मल्टीप्लायर है, लेकिन इसमें हम u को इटसेल्फ ट्रीट कर रहे हैं, ना कि हम इनपुट को मल्टीप्लाई कर दें h से। अच्छा, नहीं यहाँ पे u तो आपका डेटा सिंबल है ना, उसको आप बस सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं h के साथ। ये फ्लैट फिटिंग चलना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव तो है नहीं, तो बस u सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है फ्लैट फिटिंग में। मगर अब ये कि आप दो एंटीना से भेज रहे हैं ना आप, और दो टाइम स्लॉट्स पे रिसीव कर रहे हैं। सर वैसे पिछले लेक्चर्स में हम u को कहते थे कि ये x मल्टीप्लाई बाय h है, जो प्रीवियस लेक्चर्स थे। अच्छा चलो वो अब यहाँ पे ना रखें ना, यहाँ पे इस तरह से लेना कि u आपका सिंबल है, ठीक है, जो असल डेटा है, और आपके हो चुके दो पाथ्स हैं तो वहाँ से आ रहा है, और ये एक रिसीवर है, मगर एक रिसीवर में भी आप दो टाइम स्लॉट्स के लिए ले रहे हैं। तो पहले रिसीवर में ये आएगा प्लस W1, दूसरे टाइम स्लॉट पे उसी रिसीवर में ये चीज़ और प्लस W2 आएगी। ये दोनों सिग्नल आपने लिख दिए। सेकंड का कॉन्जुगेट ले लें दोनों साइड्स का, तो कॉन्जुगेट के बाद वो ये बन जाता है। इसके बाद आपको बुक की क्वेरी समझ भी आ जाएगी, या आप इसको इस तरह से लिख लें, या जैसे मैंने अभी सारा प्रूफ किया, आप इसके बाद y1 y2 निकल आएंगे, फिर उनको आप इस एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं। सर ये बता दें कि कोहेरेंस टाइम इनमें कांस्टेंट है? हाँ, इसमें कोई चक्कर ही नहीं ना कोहेरेंस टाइम का, डिले भी आपने खत्म। हाँ, आप इसमें कोई इंतजार करने की ज़रूरत नहीं, आपने पहले भेजा अगले में ही दोबारा उसको रिपीट करके भेज दिया। देखिए ना, पहले वाले में y1 पहले के लिए है, y2 दूसरे वाले के लिए। y1 में देखिए ना h1 h2 ही जा रहा है, और y2 में भी h1 h2 जा रहा है, ठीक है, चैनल कोएफिशिएंट चेंज नहीं हुए। वो तो कॉन्जुगेट इसलिए आ गया कि यहाँ पे वो उसने y2 का कॉन्जुगेट लिया और u1 u2 h कॉन्जुगेटेड थे, कॉन्जुगेट लिया तो u1 u2 का कॉन्जुगेट खत्म हो गया, तो सारा का सारा h पे आ गया। ये एक्सप्रेशन भी सही है और ये वाली एक्सप्रेशन भी सही है। यहाँ पे आप देखें h1 h2 सेम ही रहे, सारा कुछ चेंज है वो एक्चुअली डेटा में, तो डेटा में आ रहा है। आप ये दोनों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो चैनल सेम रहा। अब ये है
y ऑफ 1 का भी कॉन्जुगेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि y1 कॉन्जुगेट और हाँ y ले ऑफ, लें, लेना तो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। मतलब 4 कॉम्बिनेशन सर बन रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, बल्कि तो ठीक, हम एक्चुअली जो रिसर्च में जिस तरह उसने किया हम उसको फॉलो कर रहे जी हैं। सर मैं ये उसने क्लियर। y1 लिखा और y2 का कॉन्जुगेट ले लिया। ये मैंने आपको बताया y1, ये दो इक्वेशंस बन गई, इसी से आपने वो मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे। अब इससे मज़े की बात है कि इसमें दो को बनते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन में आपके पास u का 2/2 का बनता है, एक रिप्रेजेंटेशन में आपके पास h का बनता है, तो दोनों अपनी जगह ठीक हैं इक्वेशंस। मज़े की बात यह है कि इन दोनों मैट्रिसेस के जो कॉलम्स हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल है। आप कहेंगे सर कैसे हो गया? कैसे ये हुआ कि आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है पहले का हेर्मिशियन और दूसरा एज इट इज़। पहले का हेर्मिशियन तो वो रो बन गया, इसका कॉन्जुगेट किया, दूसरे को एज इट इज़ लिख दिया। सो व्हेन यू विल डू द मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट दिस थिंग, दिस कम्स आउट टू बी 0. This means that these two columns are orthogonal to one another. Similarly, you can see if it is the same channels, you will get the energy. If you again take two different channels in H, you can very well see that you will be getting a 0. But if you will multiply it yourself, you will get a vector. So अब इसको हमने यूटिलाइज करना है कि ये सारे आपस में इंडिपेंडेंट हैं। इसको हमने कैसे डिटेक्ट करें? तो उसके लिए व्हाट वी डू, वी प्रोजेक्ट y onto each of the two columns to obtain the sufficient statistics. इसने स्टेप्स को मिस किया, मैं यहाँ पर आपको दिखाया था कैसे आपने। सो अगेन आपने वही अप्रोच कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन की करनी है। आपने कहा h कॉन्जुगेट ओवर h मॉड, उसको y से मल्टीप्लाई किया। y आपका क्या है? y आपका 3.75 इक्वेशन का जो आउटपुट का वेक्टर है। और चैन कोवेरिएंस कौन से लिया आपने? आपने फर्स्ट कॉलम लिया h मैट्रिक्स का, इसका जो फर्स्ट कॉलम उसका हेर्मिशियन उसको y से मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने पहले भी देखा है। और नीचे आपको पता है कि आपको h मॉड का नॉर्म लेना पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट। तो आपको पता है नॉर्म किसे हो रहा था कि वेक्टर इनटू इटसेल्फ, मतलब वेक्टर का आपने यहाँ पे हेर्मिशियन ले लिया। y1 y2 की इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दें, ये y1 y2 आ गए, y2 कॉन्जुगेट y1 आ गए। इनको आपने प्रोडक्ट लिया, इनके कुछ इसमें से आपस में कैंसिल भी हो जाएंगी ये टर्म्स, आप देख लें एग्जैक्टली कैंसिल हो रही है। नीचे आपके पास h1 मॉड स्क्वायर h2 मॉड स्क्वायर आ जाएगा, जो अंडर रूट है तो वो उसका फाइनली h मॉड स्क्वायर अंडर रूट, तो h मॉड नीचे आ जाएगा। ऊपर आपके पास ये वैल्यूज़ बन जाएंगी, h1 है, h2 है, और फिर ये h1w h2w भी है। ये h2 मॉड स्क्वायर हो जाएगा, h1 मॉड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये h मॉड स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाय h मॉड स्क्वायर, तो आपके पास h मॉड का गेन मिल जाएगा u1 का। और यहाँ पे जो नॉइज़ की टर्म्स जहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है वो सारी टर्म्स जो हैं, ये दो जो बच गई थी वो h1 ये बाहर आ जाएगी। अब ये तो समझ आता है h मॉड u1 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने सेकेंड कॉलम पे भी जब आप करेंगे तो आपको u2 के साथ आ जाएगा। तो एट ए टाइम आपके पास दोनों सिम्बल्स निकल आएंगे u1 और u2 हर दो टाइम स्लॉट्स के बाद। अच्छा ये जो होगा ये नॉइज़ है। अब नॉइज़ की स्टैटिस्टिक्स कैसे निकालनी है मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने वो सारे स्टेप्स यहाँ नोट्स में कर दिए ताकि आपको आराम से समझ आ जाए।
ये है एच इंटू डब्ल्यू और एच मॉड। तो डब्ल्यू को खोल लें आप, डब्ल्यू आपको पता है क्या होता है, एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ है, कॉम्प्लेक्स नॉइज़ है, सारा कुछ आपको पता है। कॉन्जुगेट करने से माइनस होगा, एच टू एज इट इज ही आ जाएगा उसका रियल इमेजिनरी पार्ट। फिर मल्टीप्लिकेशन करें, सारी टर्म्स बाहर आ जाएंगी। तो बाहर आने के बाद आपने क्या करना है कि जो इनके मैग्नीट्यूड्स हैं उनको अंदर ले जाएं, ताकि वो स्क्वायर होके वेरिएंस के अंदर आ जाएं सारे के सारे। उसमें जो भी माइनस साइन है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब अंदर जाके स्क्वायर होगा तो वो खत्म हो जाएगा, बस प्लस प्लस रैंडम वेरिएबल्स ही बच जाएंगे। इसके बाद आप रियल वालों को एक साथ कर लें। अच्छा, रियल के तो काफ़ी है। और इस तरह से आप इमेजिनरी वालों को भी साथ कर लें, तो सारे इसमें आ जाएंगे, वो एच एच कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1 बच जाएगा। वही एन नॉट बाई एन नॉट बाई 2 वो बना के आपके पास 0 एन नॉट आ जाएगा। सो वी हैव एक्चुअली गिवन अ प्रूफ। जो इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ था, मैंने सर आपको दिखा दिया। ये जो नॉइज़ है वो CN01 होगी और आपके पास ये स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे, हर के साथ नॉइज़ होगी, यहाँ पे एच मॉड आ जाएगा साथ गेन, और ये वो डेटा सिंबल होगा। अगर आप इसी एलएमओटी स्कीम को कंपेयर करें रेपिटेशन के साथ, जहाँ मैं कहता हूँ रेपिटेशन में मैंने उसको 2 दफ़ा रिपीट करता हूँ, ठीक है। मगर याद है कि रेपिटेशन में क्या होगा कि आपने अपना पहला सिंबल भेजा, दूसरा एंटेना चुप रहा, फिर सेकंड टाइम स्लॉट में आपने पहले को चुप करा दिया और दूसरे एंटेना से उसी सिंबल को भिजवाया। तो इसमें क्या होगा कि जब आपने इसमें पावर अगर आप देखें तो यहाँ पे आप 2 सिंबल्स भेज रहे हैं, 2 सिंबल टाइम्स में, U1 U2 आपने एक में भेजा, फिर सेकंड टाइम में भी भेजा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2 सिंबल टाइम में, यानी कि हर टाइम पे आप एक सिंबल भेज रहे हैं और एनर्जी उसकी हाफ है, क्योंकि हम एज्यूम करें कि भाई एनर्जी हम सेम रखते हैं दोनों केस में, तो वहाँ पे तो एक एंटेना में सारी एनर्जी लग जाएगी और यहाँ पे दोनों एंटेना से जाएगा तो दोनों में हाफ ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमने सेम रखी है और इसमें हाफ एनर्जी के साथ एक सिंबल जाएगा और हाफ इन दूसरा सिंबल भी जाएगा, ताकि टोटल एनर्जी वही रहे जो आपने एक सिंबल के साथ भेजनी है। एक क्वेश्चन मोटी था को आप जी पूछे मुझे। सर, ये जो हम रेपिटेशन करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं, जब सर जो हमारा, फिर इसका मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन रेट है वो हाफ हो जाता ना, कि हम एक सिग्नल को 2 दफा सेंड कर रहे हैं या उससे ज्यादा दफा, जितनी दफा सेंड करें उस हिसाब से उसका रेट कम होता जाएगा, जाहिर है, स्पीड जाहिर है, हाँ बिल्कुल कम्युनिकेशन। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि यार नहीं, ऐसा करें कि BPSK जो है ना, हमने देख लिया कि अब साफ करें। अच्छा सर हाँ जी, वो बस सर मेरा कुर्सी चेंज करनी। क्वेश्चन, सर मेरी आवाज नहीं आई है। जी मुझे आवाज़ आ गई, मैंने आपको जवाब दे दिया ना। हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही ना, कट रही है। नहीं नहीं, वो अभी मैंने वो कुर्सी चेंज कर रहे थे घर वाले ना, इसलिए मैं थोड़ा खामोश हो गया था। आपको तो मैंने जवाब दे दिया ना आपके सवाल का। सर अब आवाज नहीं ना आ रही, तो मुझे मुझे समझ नहीं आई आपने कब जवाब दिया, मुझे आवाज आई नहीं आप। अच्छा, आपको आवाज़ आई नहीं, तो आपका क्या सवाल था, दोबारा रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये था कि जब हम कहते हैं कि रेपिटेशन रहते हैं एक सिग्नल को सेंड करने के लिए, हाँ हाँ, तो तो मुझे याद आ हमारा जो गया, डेटा कम्युनिकेशन रेट जाहिर रेट है, है, जो स्पीड। बिल्कुल डेटा रेट हाफ हो जाएगा, जितना आप रिपीट करेंगे उतना डिक्रीज होगा ना। आप उसी सिंबल को अगर 10 दफ़ा भेजेंगे, 10 टाइम तो आपने डिक्रीज कर दिया अपना रेट, ठीक है, अगर आप रिपीटेशन स्कीम यूज़ करें। यस तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। अब मगर हम देखें इसको करते कैसे, इसको हल कैसे किया जाता है सर, कम्युनिकेशन को। इस चीज का सर
सर इस चीज का हमारे चैनल टैप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता होता है, ये अभी नहीं रेपिटेशन है, से? अभी चैनल टैब छोड़ देना, अभी कहाँ से चैनल टैब आ गया, अभी तो एक ही चैनल टैब पढ़े हैं आप, सादा एक टैब है बस। और अगर मल्टीपल एंटेना है तो वो भी सबके साथ फ्लैट फेडिंग है, हर का एक एक टैब है, अभी टैब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम पढ़ेंगे कि इनको इसको कैसे इंप्रूव किया जा रहा है। अभी आप रेपुटेशन को ध्यान में रखें। आप देखें मैंने पहले एलएमओटी पढ़ाना शुरू किया आपको, अब वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखें अगर मैं एलएमओटी में बीपीएस के सिंबल भेजूँ, ठीक है, तो बीपीएस के एक में आपको पता मैंने यहाँ पे एलएमओटी में क्या हो रहा है कि दो सिंबल्स दो टाइम में जा रहे हैं, इसका मतलब मैं दो बिट्स दो सिंबल टाइम में भेजूंगा, क्योंकि बीपीएस के में तो एक सिंबल एक बिट के बराबर है, ठीक है। तो मैं दो सिंबल दो टाइम स्लॉट्स में दो बिट भेज रहा हूँ। अच्छा, अब रेपिटेशन स्कीम इसके बराबर लेके आए आप, तो रेपिटेशन में आपको यूज करना पड़ेगा 4 पैम। 4 पैम में आपको पता है कि दो दो बिट्स का एक होता है ना, 4 पैम में 4 होते हैं ना, बीपीएस के में 2 होते हैं, 4 पैम में 4 होते हैं, तो हर एक सिंबल 2 बिट को जी सर। रिप्रेजेंट करता है। मगर जाहिर है अगर आपने रेपिटेशन यूज करना है तो उसमें आप कैसे यूज करेंगे, एक सिंबल को भेजा पैम को, दूसरे एंटेना को खामोश रखा, फिर उसी सिंबल को आपने दूसरे एंटेना से भेजा, पहले को खामोश रखा, तो आपको दो टाइम स्लॉट्स में आपने एक ही पैम को भेजा जो पैम 2 बिट्स के बराबर था। तो इन इफेक्ट आप वही कर रहे हैं जो आप बीपीएस के में कर रहे हैं, कि आप एक्चुअली एक बिट को भेज रहे हैं एक सिंबल टाइम में, ठीक है, क्योंकि आप रिपीटेशन की वजह से दो को रिपीट ही कर रहे हैं, तो इन इफेक्ट तो आप यही कर रहे हैं कि आप दो को दो में भेज रहे हैं, इसका मतलब एक को एक में भेज रहे हैं, दो को दो में कह लें, एक को एक में कह लें। अब मगर इससे फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क यहाँ पे ज़रा देखिए, मैंने नोट्स बनाए हैं इसके स्पेशली आपके लिए, कि देखिए ना पैम में भी यही फॉर्मूला है, एलएमओटी का भी यही फॉर्मूला, फ़र्क क्या है कि इसका एसएनआर है 5b², इसका एसएनआर है a² एन नॉट। अगर मैं कहूँ इनका मिनिमम डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस मिनिमम का मतलब है दो सिंबल्स जो आपके कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में उनके दरमियान का फासला। बीपीएस के यहाँ को -1 +a था, फासला उसका 2a था, और यहाँ बीपीएस के में आपका पैम में आपको पता है -3b या b था, तो फासला वहाँ भी 2b का था। अगर मैं 2b 2a को सेम रखूँ, यानी b = a रखूँ, तो इस केस में जो मेरा एरर होगा, यहाँ 5b² हो रहा है, यहाँ पे b² आ रहा है। सेम डिस्टेंस अगर मैं रखूँ, अगर दोनों में सेम डिस्टेंस हो, ठीक हो गया, सेम डिस्टेंस अगर हो दोनों का, मिनिमम डिस्टेंस अगर दोनों का सेम हो, तो इसका मतलब होता है दोनों का हमने एरर को सेम रखा। उसके लिए आप देखें कि पैम में आपको कितनी एनर्जी, 5 टाइम्स मोर एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड in BPSK to be transmitted over LMOT. This is PAM transmitted by repetition. This is BPSK transmitted by LMOT. यही चीज वो कह रहा है कि वहां पे आपको 5 टाइम्स एनर्जी मजीद चाहिए। मगर इसमें एक बात है, आप कहेंगे जी नहीं, देखें जी 5 टाइम्स एनर्जी आप कह रहे हैं, तो वहां तो आपने एक एंटेना को खामोश रखा हुआ था, तो ये भी तो देखें ना, अगर आप उनकी एनर्जी को भी आप नॉर्मलाइज करें, हमने कहा चलें ठीक है कर देते हैं, तो वहां पे डबल है ना, तो आप डबल के फैक्टर से उसको डिवाइड कर दें ताकि एनर्जी को भी बराबर कर दें आप। सो अगर हमने उसको भी नॉर्मलाइज करें तो हम 2 से मजीद डिवाइड, फिर भी 2.5 टाइम्स आपको मोर पावर चाहिए रेपिटेशन में पैम के साथ एज कंपेयर टू बीपीएस के ओवर एलएमओटीज की। अब ये क्यों मसला हो रहा है, ये वही रीज़न है जो हमने वहाँ पढ़ा था जब पीपीएस के क्यूपीएस के झगड़ा हुआ था, और जब हमने फिर आगे जाके हमने पैम को कंपेयर किया था रोटेशनल के साथ। और झगड़ा ये है कि यहाँ पे आपके पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है पैम के लिए, वो है H1 H2 का ट्रांसपोज, यही आपका वो जो कोहेरेंट डिटेक्शन का फैक्टर बनेगा। मगर एलएमओटी में आप देखें तो आपके पास दो वेक्टर्स बन रहे हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स H था उसमें दो ऑर्थोगोनल कॉलम्स थे, तो दो ऑर्थोगोनल कॉलम्स का मतलब ये है कि आपके पास डबल आपके पास ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस आ गई, और उन दोनों डायरेक्शंस की वजह से आपके पास दो डायमेंशन आई। जब जहाँ भी दो डायमेंशन होता है, आपने देखा कि जब भी डबल डायमेंशन यूज़ करते हैं तो आपके पास जो सिस्टम की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ क्यू या एरर वो वो बेहतर हो जाती है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर वो टाइम हो गया हुआ है, 5 मिनट ऊपर हो अभी हुआ है कि भाई 2 बजे टाइम है,
2 अभी बजे हैं आपकी घड़ी में, क्या मेरी घड़ी में अभी 2 बजे? सर पूरे 2 बजे हुए मैं कह रहा हूँ। हाँ 5 मिनट तो आप कह रहे थे ना, 5 मिनट हो गए, 5 मिनट कहाँ से, अभी भी 2 बजे है। नो सर वो जो टाइम रिकॉर्डिंग है उस पे 5 मिनट हो गए, मैं ये कह रहा था, वैसे इस पे 2 क्या? ही बजे। अच्छा अच्छा चलो, उसको तो हमने पहले से मैंने स्टार्ट किया था ना, ये जी रिकॉर्डिंग तो मैंने 1 बजे स्टार्ट की थी, मैंने 5 मिनट पहले वैसे ही स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैंने आपको 1 घंटा ही पढ़ाया। ऑलराइट, सो आई विल एंड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। बस ये सब